So what are the lipids? Lipids are basically organic compounds, ठीक है. Lipids are organic substances which contain carbon, hydrogen and oxygen atom. Just like the carbohydrates, which also has the same composition like carbon, hydrogen and oxygen, but in the lipids we have the less oxygen concentration. ठीक है. Lipids are simple organic substances which contain carbon, hydrogen and oxygen. Okay. And from the biochemistry point of view, the lipids are made up of the glycerol molecules which are attached to the fatty acids. अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं बायोकेमिस्ट्री में कि लिपिड्स की क्या कंपोजिशन है, तो लिपिड्स आर मेड अप ऑफ द फैटी एसिड्स. ठीक है. फैटी एसिड्स की चेन्स होती हैं which are attached with the alcohol molecule, glycerol or alcohol molecule. ठीक है. So in simple word, the lipids are the polymer of the fatty acid that contain a long non-polar hydrocarbon chain with a small polar region containing the oxygen, which is attached with an alcohol or glycerol molecule. ठीक है. अब what are the fatty acids? अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि lipids are made up of the fatty acid and glycerol molecule. So what are the fatty acids? The fatty acids are basically the हाइड्रोकार्बन चेन्स होती है. ठीक है. कार्बन और हाइड्रोजन की चेन्स होंगी. एट द एंड ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल अल्कोहल अटैच होगा विच इज बेसिकली अ कार्बन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है इसमें. ठीक है. So what are the lipids? Lipids are the organic substances which contain carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है. And the basic structure of the lipids are made up of the glycerol molecule which are attached through an ester linkage with the fatty acid molecules. ठीक है. हमारे पास फैटी एसिड्स की चेन होंगी जो कि ईस्टर लिंकेज के थ्रू अटैच होंगी हमारे पास अल्कोहल ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल के. ये बेसिक कंपोजिशन है इन सिंपल वर्ड. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट, व्हाई द लिपिड्स आर सो इम्पोर्टेंट. द lipids are very important because they are the structural component of all the cell membrane. They provide us the energy, they provide us the precursor for the various synthesis of the various hormones in our body, and they help in the digestion and absorption. You will go through a lot of the importance. ठीक है. अच्छा, अब what are and how do we classify the lipid? The lipids are basically classified and divided into the three major classes on the basis of their chemical compositions. They are the simple lipids, compound lipids and derived lipids. अगर मैं आपसे पूछूं कि how do we have classified the lipid? So we have classified the lipids on the basis of their chemical composition. Which are the simple lipids? Simple lipids are the esters of the fatty acid with various alcohols like the fats and waxes. Simple lipids में और कुछ भी नहीं होगा. You will have nothing. You will have just the fatty acid chains which through an ester linkage will be attached with the alcohols. ठीक है. And an example are the fat, oil and waxes. The oils and the fats and the waxes which you encounter in our daily life, they are all simple lipids. ठीक है. The next we have the compound lipid. In addition to the fatty acid and the alcohol, if you have an additional group that is attached with the lipid, so you will call it a compound lipid. And the example of the compound lipids are sulfolipids, amino lipids, lipoproteins, glycolipids. Okay. For example, if the carbohydrate, the protein, any additional group, if it is attached with the simple lipid, so you will get a compound lipid. Then the third category, we have the derived lipid. The derived lipids are very important. Why do they are so important? Because in the derived lipid, how do we get a derived lipid? The derived lipids are those lipids which, if we hydrolyze the simple and the compound lipid, so we get the derived lipids. अगर आप सिंपल या कंपाउंड लिपिड्स को हाइड्रोलाइज कर देते हो, उसके चेन को ब्रेक कर देते हो कार्बन हाइड्रोजन की, ठीक है, कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कर देते हो, तो आपके पास क्या होगा, फैटी एसिड्स आ जाएंगे, ग्लाइसरॉल आ जाएगा और स्टीरॉइड आ जाएगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल. In the derived lipid, you will get it in your detailed lecture. Derived lipid में we have the 3 types हैं. Derived lipids की भी 3 types हैं. इसमें एक होता है precursor lipids, precursor derived lipids होता है. एक होता है हमारे पास
एसोसिएटेड डिराइव्ड लिपिड, ठीक है, और एक होता है सिंपल डिराइव्ड लिपिड। तो आप प्रिकर्सर डिराइव्ड लिपिड्स वो वाले होते हैं जो कि आप सिंपल लिपिड्स को हाइड्रोलाइज कर देते हो एंड दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ द वेरियस विटामिन्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। और एसोसिएटेड डिराइव्ड लिपिड्स में हमारे पास कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स आते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड्स आते हैं एंड स्टेरॉइड्स आर बेसिकली क्या है, दे आर अ डिराइव्ड लिपिड है। इसमें यही होता है कि आपके पास हाइड्रोकार्बन की चेन्स होती हैं, उसके साथ अल्कोहल्स अटैच होते हैं, ठीक है। एंड द cholesterol is why the cholesterol is a derived lipid, okay, and why it is so important because the cholesterol is the form of the lipid, circulatory type of the lipid जो कि आपकी बॉडी में ब्लड में सर्कुलेट होता है and it transport the everything from the one place to another, ठीक है। जो सर्कुलेटरी टाइप ऑफ द लिपिड है that is in our blood जो कि कोलेस्ट्रॉल है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर ऑल अवेयर कि इंक्रीज इन द कोलेस्ट्रॉल अमाउंट अगर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो हम लिपिड्स को, कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड को बॉडी में इसी तरह मेंटेन रखते हैं। वी से द हाई कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल और डिफरेंट टाइप ऑफ द कोलेस्ट्रॉल जो है वो HDL है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछें कि लिपिड्स में, फर्स्ट ऑफ ऑल द lipids are organic compounds, ठीक है, which are composed of the fatty acid chains which are attached with the alcohol molecule. Then we have classified the lipid into simple lipids जिसमें कुछ भी नहीं होता, fatty acids की chains होती हैं जो कि ईस्टर लिंकेज के थ्रू अल्कोहल के साथ अटैच होती हैं। Then we have the compound lipids. If you have an additional group to the simple lipids, you will get a compound lipids. And then the most important class of the lipids is derived lipid. Why it is so important? It is so important because the steroid in the steroid which is associative derived protein come under the category of the derived lipids है जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारी क्लिनिकल और फिजिकल मतलब बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है व्हाट आर द सिंपल लिपिड्स, मैंने आपको कह दिया फैट, ऑयल्स एंड वैक्सेस व्हिच आर द सिंपल लिपिड्स है, ठीक है। इसमें और कुछ भी नहीं होगा। द हाइड्रोफिलिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज रेफर्ड टू एज पोलर हैंड होगा, एक जो हाइड्रोकार्बन की चेन होगी ना वो नॉन पोलर होगी, ठीक है। और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपके पास अटैच होगा अल्कोहल एंड पे वो हमारे पास पोलर होगा। नाउ यू ऑल नो कि द लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ द फैटी एसिड्स, ठीक है, फैटी एसिड्स के। सो व्हाट आर द फैटी एसिड? द फैटी एसिड आर कंसिस्ट ऑफ अ straight chain of an even number of the carbon atom with the hydrogen atom along the length of the chain. At one end of the chain a carboxylic group होता है, ठीक है। आपके पास एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, ठीक है, और उसके एक एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। ये सिंपल कंपोजिशन है एंड इट इज दैट द कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है दैट मेक्स इट इन एन एसिड। एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ये होगा कि आपके पास जो कार्बन का जो बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन के दरमियान कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे उनमें कार्बन के दरमियान एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा। इफ इन स्ट्रक्चर ऑफ द फैटी एसिड यू गेट even one double carbon bond, so it will become an unsaturated fatty acid, and if there is no double bond among the carbon atom in the fatty acid, so it will be an unsaturated fatty acid, ठीक है। Then what is the cholesterol? Before going into the detail about the how we will detect a cholesterol in a given solution, so the today practical is about the lipids, and then in the lipid we will perform the detection of the cholesterol in a given solution. And why do we perform a cholesterol? Because the cholesterol is very important from the clinical point of view, and it is a type of cholesterol is a type of steroid, okay, which is basically steroid is a associative derived protein. Cholesterol is comes under the category of steroid. The steroid come under the category of the associative derived protein, ठीक है। और it is a type of the circulatory lipid है। अगर आपसे पूछें, हम एग्जाम में पूछें कि what is cholesterol, तो cholesterol is a type of associative derived protein, ठीक है। It comes under the category of the associative derived protein, मतलब जिस cholesterol is a steroid which comes under the category of the associative derived protein, ठीक है। And why it is so important? लिपिड जी मैम, एसोसिएटेड डिराइव्ड प्रोटीन और लिपिड। हाँ,
एसोसिएटिव, हाँ, आई एम गोना टेल यू अबाउट दिस। एसोसिएटिव डिराइव प्रोटीन का मतलब ये कि इट इज एसोसिएटेड विद परफॉर्मिंग द वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी, ठीक है। मतलब कोलेस्ट्रॉल है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये कंपाउंड लिपिड्स के साथ प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको एसोसिएटिव कहते हैं। आपके जो डिटेल लेक्चर होगा ना लिपिड्स के बारे में, इसमें आपको कोलेस्ट्रॉल के बारे में और एसोसिएटिव डिराइव प्रोटीन के बारे लिपिड्स के बारे में डिटेल में बताएंगे फिर। आई एम जस्ट ओनली गिविंग यू अ लिंक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। टुडे यू आर गोइंग टू learn about how do we will detect a cholesterol. So what is a cholesterol? Cholesterol is basically a type of the associative derived protein, ठीक है। It comes under the category of associative derived protein, and it is the circulating type of the lipid in our blood. And what is its basic structure? In the cholesterol, what happened? The fatty acid chain in the alcohol molecule, but the lipids are composed of the fatty acid attached with the lipid alcohol glycerol molecule, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल में आपके पास क्या होता है? Cholesterol is important from its structure point of view. Like its structure is composed of the 4 linked hydrocarbon chains होती हैं, जो कि एक स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर बनाती हैं। आपके पास जो लिपिड्स का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। आपके पास फैटी एसिड की चेन्स हैं और फैटी एसिड जो हाइड्रोकार्बन की चेन्स है उसके एंड पे आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, एक स्ट्रेट चेन में जा रहा होता है। अगर यही आपके पास फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल अगर एक रिंग फॉर्म में बनाते हैं स्ट्रक्चर ना, तो ये आपके पास क्या स्ट्रक्चर हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल का आपके पास हमेशा 4 हाइड्रोकार्बन की चेन्स होंगी। जब 4 हाइड्रोकार्बन की चेन्स आपके पास लिंक होंगी तो वो आपके पास कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। There was some problem, I couldn't upload the cholesterol की पिक्चर यहाँ पे नहीं कर सकी क्योंकि अपलोड नहीं हो रही थी, इधर इंसर्ट नहीं हो रही थी। लेकिन अगर आप लोग गूगल करें तो आपके पास कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर आ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का एक रिंग स्ट्रक्चर होता है। लिपिड्स के या फैटी एसिड की चेन को जब आप एक रिंग फॉर्म में बना देंगे तो आपके पास कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको मैं एक दफा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ लिपिड्स, ठीक है। What are the lipids? Lipids are simple organic substances, ठीक है, which are composed of the fatty acid chain, which are attached through an ester linkage with the alcohol या glycerol molecule. And what are the fatty acids? ठीक है, fatty acids are basically fatty acids। अब फैटी एसिड्स क्या हैं? फैटी एसिड्स आर कंसिस्ट ऑफ द स्टेट चेंज ऑफ इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम इन हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और एक एंड पे इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। एंड व्हाट आर द अल्कोहल? अल्कोहल में आपके पास सिंपल क्या होता है? ग्लाइसरॉल में आपके पास क्या होता है कि कार्बन एटम्स होते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ठीक है। जब फैटी एसिड और अल्कोहल मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं ईस्टर लिंकेज के थ्रू, सो दे मेक द लिपिड्स। ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड? सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर हाइड्रोकार्बन की चेन में अगर आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो इट विल बी एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर सब सिंगल बॉन्ड होंगे, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो आपके पास क्या होगा? आपके पास होगा आपके पास होगा सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। व्हाट इज द कोलेस्ट्रॉल? और देन वी हैव द टाइप क्लासिफाइड किस तरह हमने किया है लिपिड्स को। सिंपल लिपिड्स है, कंपाउंड लिपिड्स और डिराइव लिपिड है। आपके पास जो डिराइव लिपिड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द एसोसिएटिव डिराइव प्रोटीन्स है, एसोसिएटिव डिराइव लिपिड्स में आता है, जो कि आपको सर्कुलेटरी टाइप ऑफ द लिपिड है इन योर बॉडी, ठीक है। एंड देन व्हाट इज द कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल इज एन एसोसिएटिव डिराइव प्रोटीन है, ठीक है, लिपिड है, एसोसिएटिव डिराइव लिपिड है आपके पास, और ये सर्कुलेट होता है थ्रू आउट इन योर बॉडी। और इसमें बेसिकली इट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द कोलेस्ट्रॉल इट हैज गॉट रिंग स्ट्रक्चर, 4 रिंग स्ट्रक्चर होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप इसके बारे में, ठीक है। आपसे ऑस्पी एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि सिंपल लिपिड का स्ट्रक्चर क्या है? अगर सिंपल आपसे कोई पूछे, ठीक है, अगर आपके पास इंटरेक्टिव स्टेशन होता है उस पर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड, तो आपने कहना है द लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड अप ऑफ द फैटी एसिड चेन व्हिच आर लिंक्ड थ्रू एन ईस्टर लिंकेज विद अल्कोहल मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड देन अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपके कोलेस्ट्रॉल डिटेक्शन का कोई टेस्ट आता है और आपसे पूछा जाए व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, तो आपने कहना है द कोलेस्ट्रॉल इज एन एसोसिएटेड डिराइव प्रोटीन, इज अ सर्कुलेटरी टाइप ऑफ द लिपिड इन आवर बॉडी, ठीक है, एंड इट हैज द बेसिक 4 लिंक हाइड्रोकार्बन रिंग स्ट्रक्चर होता है, बस, नॉट मोर देन दिस, ठीक है। नाउ कम टू द प्रैक्टिकल, वी विल कम टू द प्रैक्टिकल, ठीक है।
So today we cannot perform, but I will tell you about how we will perform the detection of the lipid, जिसमें है detection of the lipid में हम करेंगे detection of the cholesterol in a given solution. ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया है कि कोलेस्ट्रॉल क्यों इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कोई चीज लिपिड किसी फॉर्म में सर्कुलेट करती है तो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में करते हैं, जो कि एक डिराइव लिपिड है। ठीक है, तो इसलिए हम सारे डिटेक्शन टेस्ट जो हैं वी विल परफॉर्म इट ऑन द कोलेस्ट्रॉल. So the first journal test of the lipid will be, and up till now you will all be aware that in order to detect anything or any organic nutrient, we first perform some journal tests and then we go for the specific test. The journal tests are those tests कि मतलब what is the journal routine information and we are all aware about it. ठीक है, इसमें कोई hard and fast नहीं होता, कोई भी लिपिड होगा ना वो इस जर्नल टेस्ट से आप डिटेक्ट कर लेंगे। मतलब जर्नल टेस्ट वो होते हैं कि जो कि सारी कैटेगरीज पे इम्प्लीमेंट होते हैं। ये नहीं होता कि कोलेस्ट्रॉल पे होते हैं और विटामिन डी पे नहीं होंगे या हार्मोन्स पे नहीं होंगे, जो कि विच आर ऑलरेडी लिपिड है। ठीक है, सो अगर आपके पास कोई हार्मोन भी होता है, कोई आपके पास ऑयल होता है, कोई विटामिन होता है, तो उन सब की नेचर क्या है, लिपिड, दे आर लिपिड इन द नेचर। तो जर्नल टेस्ट सब चीजों पे इम्प्लीमेंट होंगे। अगर आपके डे टू डे आपके हेयर ऑयल है, कुकिंग ऑयल है, any type of the lipid, you say it and the journal test will be applicable on those lipids. ठीक है, so the first journal test is the solubility in the organic solvent. The solubility in the organic solvent का ये है कि how do you perform it. ठीक है, you will perform it like you will take, first of all I will take you that how you will perform it and then I will tell you about the principle, basic principle. So what you will do, solubility test में what you will do that you will take 2 test tubes. ठीक है, in the first test tube you will add 3 ml of the ether and few drops of the oil and you will shake it well. ठीक है, in the second test tube you will take 3 ml of the water and you will add the few drops of the oil and shake it. आपने क्या किया, आपने 2 टेस्ट ट्यूब्स ली। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में आपने ऑयल डाला और ईथर को डाला या क्लोरोफॉर्म को डाला और दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपने सिंपल वाटर को डाला। ठीक है, आपने दोनों को शेक किया, आपने देखा कि जिसमें क्लोरोफॉर्म या ईथर था उसमें बिल्कुल आपको एक क्लियर सॉल्यूशन मिल गया। यू विल गेट अ क्लियर सॉल्यूशन एंड इन आंसर टेस्ट ट्यूब वेयर देयर वाज द वाटर एज अ सॉल्वेंट, तो वो उसमें इनसॉल्युबल रहा। ठीक है, आपने 2 फेज का आपको सॉल्यूशन मिला जिसमें ऑयल इनसॉल्युबल था। आपने देखा कि ऑयल ऊपर तैर रहा है और पानी नीचे है। सो दिस टेस्ट शोज दैट द oil, lipids, fats, they are soluble in the organic solvent like ether and alcohol, ether and chloroform, and they are insoluble in the water. Simple. ये हमारी डे टू डे ऑब्जर्वेशन है। अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली बर्तन को पानी के साथ धोते हैं तो वो साफ नहीं होते अनलेस एंड अनटिल आप उसमें कोई डिटर्जेंट ऐसा सॉल्वेंट डालें ना जो कि उसको डिसॉल्व करे पहले ऑयल को, फिर वो पानी के साथ जाए। ठीक है, इसी तरह अगर आपके कपड़ों पे कोई स्टेन होता है, आपके ऑयली कपड़े होते हैं, तो जब तक वो पानी के साथ नहीं धुलते वो नहीं जाता, डिसॉल्व होता है अनलेस एंड अनटिल उसमें आपको डिटर्जेंट ना डालें। ठीक है, इसी तरह अगर आपने जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे वो ऑर्गेनिक सोल्यूट में, ऑर्गेनिक सोल्यूट्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में होंगे। ठीक है, हमारे पास वाटर जो है वो हमारे पास क्या है, इन वाटर जो है वो हमारे पास एक पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, लाइट डिसॉल्व लाइक। ईथर और क्लोरोफॉर्म जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास नॉन पोलर हैं। तो ऑयल बीइंग दी नॉन पोलर या लिपिड्स बीइंग दी नॉन पोलर, वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे। आपको सॉलिबिलिटी का प्रिंसिपल जो है ना, इसका सिंपल प्रिंसिपल है, दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ द लिपिड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनसॉलिबिलिटी इन वाटर। ये एक नॉन फैक्ट अंडरस्टूड रूल है। सॉलिबिलिटी हमारे पास लाइक डिसॉल्व लाइक, ऑर्गेनिक हमेशा ऑर्गेनिक में होंगे, इनऑर्गेनिक हमेशा इनऑर्गेनिक में होंगे, पोलर हमेशा पोलर में होंगे, नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में होंगे। ठीक है, क्योंकि ये आयन और चार्ज की बातें होती हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास लिपिड्स में कोई फ्री एंड, कोई हमारे पास पोलर एंड होता ही नहीं है कि जो आपको सॉल्युबल करे अनलेस एंड अनटिल आप लिपिड्स के बॉन्ड्स को ब्रेक करें और उसके आपके पास पोलर एंड्स आए और फिर वो सॉल्युबल हो। ठीक है, सो सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल ये है कि आपके पास सिंपल है कि हमारे पास प्रिंसिपल ये है कि फैट एंड ऑयल विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बिकॉज ऑफ द लेसर स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड बिकॉज ऑफ द बीइंग नॉन पोलर। ठीक है, पहला जर्नल टेस्ट फॉर सॉलिबिलिटी इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। आपने क्या किया, 2 टेस्ट ट्यूब्स ली,
दो टेस्ट ट्यूब में आपने एक में वाटर डाला, एक में ईथर डाला, दोनों में ऑयल डाला, एक में आपने क्लियर सोल्यूशन मिल गया, दूसरे में आपको क्लियर सोल्यूशन नहीं मिला, तो आपने क्या, व्हाट वाज द इन्फ्रेंस, द लिपिड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। एक जिसमें ईथर, द लिपिड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जिसमें आपके पास ईथर या क्लोरोफॉर्म ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा उसमें लिपिड डिसॉल्व हो जाएंगे, और जिसमें वाटर पोलर सॉल्वेंट था उसमें अनडिसॉल्व रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो जर्नल हमारे पास टेस्ट है वो है ऑयली नेचर ऑफ द फैट्स। ये एक सिंपल सा है, आपने एक ग्लास ऑफ पिपेट को लेना है, यू विल पुट अ ड्रॉप ऑफ द ऑयल ऑन द फिल्टर पेपर एंड यू विल ऑब्जर्व अ ग्रीसी स्पॉट। आपको क्या होगा कि आपके पास एक स्ट्रेन रह जाएगा, मतलब एक ऑयल का जो स्ट्रेन होता है ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ऑयल की कि वो स्ट्रेन छोड़ता है। आपके पास ये पेपर को वेट नहीं करता। अगर आप टिश्यू पेपर पे या फिल्टर पेपर पे या न्यूज़पेपर पे किसी भी चीज को वाटर डालें ना तो वो स्ट्रेन नहीं छोड़ता, वो सूख जाता है। लेकिन अगर आप ऑयल डालेंगे तो वो स्ट्रेन छोड़ देता है, क्योंकि ये ऑयल की अपनी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि वो स्ट्रेनी ग्रीसी नेचर होती है इसकी, ठीक है। डिड यू गेट ऑल दिस? आपको आ रहा है समझ? ठीक है। आपने जर्नल टेस्ट में कौन से दो टेस्ट थे आपके पास? जर्नल टेस्ट में थे, जर्नल टेस्ट विल बी एप्लीकेबल विद ऑल काइंड ऑफ द लिपिड्स, ठीक है, ऑल क्लास ऑफ द लिपिड, ऑल टाइप्स ऑफ द लिपिड। आपके पास जर्नल टेस्ट में जो पहला टेस्ट था वो था आपके पास कौन सा? सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल ये है कि द लाइक डिसॉल्व द लाइक, द पोलर डिसॉल्व द पोलर, नॉन पोलर विल डिसॉल्व द नॉन पोलर। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? क्योंकि इसमें हमारे पास अगर हम कहते हैं कि why the lipids are insoluble in the water, the lipids are insoluble in the water because they lack the ionic structure, they lack the proper polar structure, absence of the polarity, absence of the ionic nature, ठीक है, और lesser specific gravity होती है इसकी। आपको समझ आ रहा है? और इसमें कोई हमारे पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेंज होती है। लिपिड्स क्यों इनसॉल्युबल होते हैं? बिकॉज दे हैव द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है, इसका कोई फ्री आयनिक या पोलर एंड नहीं होता, और इसकी लेसर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ये सब चीजें आप नोट कर लें, ठीक है। लास्ट पॉइंट प्लीज कर दें। तो मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। द लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन द वाटर बिकॉज दे हैव द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, ठीक है, which doesn't have any free polar end or ionic structure, ठीक है, and they have the lesser specific gravity. The like dissolve the like, the polar will dissolve a polar and non-polar will dissolve a non-polar, ठीक है। अच्छा, अब next we will come to the specific test, ठीक है। So today the practical is all about the lipid, and then we will come now to the specific test for the cholesterol. There are two specific tests for the cholesterol detection, ठीक है। One is the Solvosky's reaction and the other is the Lieberman reaction. The Solvosky's reaction and the Lieberman reactions, these are the specific tests for the cholesterol, ठीक है। The Solvosky's reaction we perform it in the laboratory because H2SO4 is easily and readily available. Lieberman, I will tell you about the Lieberman reaction, but we will not perform the Lieberman reaction in the laboratory, and the reason is because उसमें जो एसिड्स यूज हुए हैं they are a big dangerous and ठीक है, जो कि आपको मतलब हैंडलिंग में इजी नहीं होते, और इस वजह से सिर्फ हम उसको परफॉर्म नहीं करते। अदरवाइज Solvosky's reaction and Lieberman reaction का basic principle is same, ठीक है। These are the two tests specific for the cholesterol detection, and these two are the same, but we will stick on the basis of the performance. We will only stick to the Solvosky's reaction, ठीक है। In the Solvosky's reaction, what we do, how do we perform it, and then I will tell you about the principle. First of all, what you will do, you will take, for the cholesterol detection, you need a cholesterol solution. And how do you will get a cholesterol solution? आपने क्या करना है? You will take, dissolve a few crystals of the cholesterol in the 2 ml of the chloroform. आपसे अगर पूछें कि how do we get a cholesterol solution, आप कहेंगे कोलेस्ट्रॉल कैसे अवेलेबल है हमारे पास? मैंने आपको कहा था कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक एसोसिएटिव डिराइव लिपिड है जो कि आपकी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ठीक है।
अब आपके पास ये क्लिनिक लाइफ कैसे आपको डे टू डे लाइफ में कोलेस्ट्रॉल कैसे मिलेगा, ऑयल और इनमें तो प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल आपको कैसे मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल बायोसिंथेसाइज जो होते हैं वो आपने क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास कोलेस्ट्रॉल सोल्यूशन आ जाएगा। हम क्लोरोफॉर्म में क्यों डिसॉल्व करते हैं, ऑल अवेयर के जो लिपिड्स आर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो आपने कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स को लेना है, उसको 2 ml क्लोरोफॉर्म में डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास कोलेस्ट्रॉल का सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। Then you will add the 2 ml of the sulfuric acid to it, ठीक है। आपने कोलेस्ट्रॉल का सोल्यूशन लिया 2 ml इन द क्लोरोफॉर्म, आपने उसमें 2 ml सल्फ्यूरिक एसिड को डाला। आप देखेंगे जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड अलोंग द ट्यूब डालेंगे तो एसिड हमेशा बॉटम पे चला जाता है। एंड व्हाट इज द रीजन, बिकॉज एसिड बीइंग द हैवी हमेशा बॉटम पे चला जाता है। अब जैसे ही एसिड बॉटम पे जा रहा होगा, एसिड बीइंग हैवी होता है तो वो बॉटम पे चला जाता है, ठीक है। ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाले पोर्शन में यू हैव दी कोलेस्ट्रॉल, नीचे वाले पोर्शन में यू हैव दी एसिड। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा आप ऑब्जर्व करेंगे कि रिएक्शन जो है वो अपर लेयर में, क्योंकि अपर लेयर में आपके पास लिपिड्स है और एसिड तो नीचे, तो रिएक्शन ऊपर से स्टार्ट होगा। तो अब यू विल ऑब्जर्व अ येलोइश कलर विद द ग्रीन कलर फ्लोरेसेंस एट द बॉटम, ठीक है। एंड वेयर द अपर क्लोरोफॉर्म लेयर बिकम द ब्लूइश रेड फर्स्ट एंड देन ग्रेजुअली टर्न टू द रेड कलर एज द रिजल्ट ऑफ द सॉल्वोस्कीज रिएक्शन। जैसे ही आपके पास कोलेस्ट्रॉल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो you will get a red color. As the red color comes, so it confirms the presence of the cholesterol in a solution. As soon as you get a red color, ठीक है, तो आपको ये confirm हो जाएगा, it will confirm the presence of the cholesterol in a green solution. जैसे ही आपने कोलेस्ट्रॉल के सोल्यूशन में एसिड को डाला, अपर लेयर में आपके पास अपर लेयर जो है उसमें रेड कलर आ गया, तो ये आपके पास कंफर्म करेगा कि आपके पास कोलेस्ट्रॉल सोल्यूशन में प्रेजेंट है। आपने जैसे ही एसिड को टेस्ट ट्यूब में डाला, एसिड बीइंग हैवी बॉटम पे चला जाएगा, उसका येलो कलर होगा और ऊपर वाली लेयर जो कोलेस्ट्रॉल की है उसमें आपके पास रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और आपके पास रेड कलर आ जाएगा। एज द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन यू विल गेट अ रेड कलर इन द अपर क्लोरोफॉर्म ऑयली कोलेस्ट्रॉल की लेयर में आपके पास रेड कलर आ जाएगा। जैसे ही रेड कलर आ जाएगा इट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन अ गिवन सॉल्यूशन। सो मैम ये रिएक्शन ऊपर से क्यों स्टार्ट होगा, मतलब जंक्शन से स्टार्ट नहीं होगा? मैं आपको ये बता रही हूँ, ऊपर से इसलिए स्टार्ट हो रहा है, मैं इसी पे आपको फोकस कर रही हूँ कि ऑयल, मैंने आपको कहा था इसकी लेसर स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है, ये ऊपर होता है। एसिड हैवी होता है ना तो वो नीचे बॉटम पे चला जाता है, और जैसे ही ऑयल ऊपर है ना तो जब एसिड ऑयल के साथ रिएक्ट करेगा ऊपर वाली, तभी तो उधर से ऊपर से रिएक्शन स्टार्ट होता है। आप समझ आई मेरी आपको बात? आपने शेक नहीं करना होता इसको ना। ओके मैम, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मॉरिशस में भी ऐसे कुछ था, मॉरिशस में भी आपको अगर याद हो तो आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था और उसमें लेयर्स बनी थी, ऊपर वाली लेयर से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। उसी की तरह आप जैसे एसिड डालोगे, आपने शेक नहीं करना, आपने क्या किया, कोलेस्ट्रॉल को सोल्यूशन डाला, H2SO4 को आपने अलोंग दिस साइड डाला। H2SO4 बीइंग हैवी होगा ऑयल से तो वो नीचे चला जाएगा, लेकिन जैसे ही वाइट साइड से ऊपर मतलब डिसॉल्व होगा तो वो रिएक्शन शुरू कर देगा, ऊपर वाली लेयर आपके पास रेड होगी। जब ऊपर वाली लेयर आपके पास रेड कलर दे देगी फिर तो थ्रू आउट रेड हो जाएगा, तो आपके पास कोलेस्ट्रॉल कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब व्हाट वाज द प्रिंसिपल, आपने क्या किया कि आपने सॉल्वोस्कीज रिएक्शन में यू यूज्ड ओनली 2 इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, या 2 रिएजेंट्स आपने यूज किए। एक था हमारे पास कोलेस्ट्रॉल सॉल्यूशन और दूसरा क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो कोलेस्ट्रॉल ने अगर था तो उसने रेड कलर शो किया और आपके पास टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अब प्रिंसिपल क्या था, व्हाट वाज द प्रिंसिपल ऑफ दिस सॉल्वोस्कीज रिएक्शन? इन द प्रिंसिपल यू विल से द क्लोरोफॉर्म एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर द ऑयल या कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। The concentrated sulfuric acid act as a dehydrating agent. Chloroform act as a solvent for the cholesterol. The H2SO4 act as a dehydrating agent. What it did with the cholesterol structure, cholesterol का ring structure होता है, इस एसिड ने क्या किया कि इसने हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के रिंग स्ट्रक्चर से 2 वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया, ठीक है। आपके पास कोलेस्ट्रॉल का रिंग स्ट्रक्चर होता है, अगर आपके पास अभी बोर्ड मतलब आपको मैं क्लियर फिर बता देती, वी डोंट हैव द फैसिलिटी हियर, लेकिन मैं आपको समझा देती
कि आप लोग जब आएंगे फिर मैं आपको बता दूंगी कि कोलेस्ट्रॉल का रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उस रिंग स्ट्रक्चर से इसने H2SO4 ने 2 वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया, ठीक है। अब कौन सी पोजीशन से रिमूव किया? आइदर 2, 4 और 3, 5 कार्बन पोजीशन से। जब ये 2 वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा बाइकोलिस्टाडाइन 2, 4 और 3, 5। हम कहेंगे कि as soon as the, ठीक है, the H2SO4 act as a dehydrating agent and it will remove the 2 molecule from the position 2, 4, either 2, 4 और 3, 5 कार्बन पोजीशन से 2 वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा और आपके पास क्या आ जाएगा? बाइकोलिस्टाडाइन, आइदर 2, 4 और 3, 5 बाइकोलिस्टाडाइन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? सबसे पहले H2SO4 ने डिहाइड्रेशन की तो आपके पास क्या आ गया? 2, 4 और 3, 5 बाइकोलिस्टाडाइन। अब जैसे ही ये हो गया तो उसके बाद इसी सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर होता है उसने क्या किया कि बाइकोलिस्टाडाइन को सल्फोनेट किया, तो आपके पास क्या आ गया है? सल्फोनिक एसिड बाइकोलिस्टाडाइन आ गया, ठीक है। और इसने आपको रेड कलर दे दिया और ये आपका टेस्ट पॉजिटिव हो गया। सो द बेसिक प्रिंसिपल वाज कि द सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट एंड सल्फोनेटिंग एजेंट एंड एज द रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन विद द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, we got a sulfonic acid bicholesteridine which give us the red color. आपको समझ आ रहा है सब कुछ? Yes, ma'am. Yes. मैं फिर रिपीट कर रही हूँ और फिर रिपीट करूंगी कि बिकॉज सॉल्वासिस रिएक्शन प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर ऑस्पिस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए एंड वी डू एक्सपेक्ट इट्स प्रिंसिपल। आपके पास कोलेस्ट्रॉल का रिंग स्ट्रक्चर था, ठीक है। आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग इट ओनली फॉर यू, आपको समझ आ जाए। आपने सॉल्वोस्कीज रिएक्शन आपने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब ली, उसमें आपने कोलेस्ट्रॉल का सॉल्यूशन डाला, उसने आपने सल्फ्यूरिक एसिड को अलोंग द साइड डाला, तो आपने देखा कि ऊपर वाली लेयर में आपके पास रेड कलर आ गया, ठीक है। अब जब रेड कलर आ गया तो इसने आपको कंफर्म कर दिया कि यस वी हैव द कोलेस्ट्रॉल इन द सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा क्या हुआ? अगर आपके ऐसा क्या वहां पे रिएक्शन हुआ कि आपके पास रेड कलर आया? अगर मैं आपसे ऑस्मोसिस में पूछूं कि why do we get a red color as a result of the Solvosys reaction which confirm the cholesterol in a solution, तो आपने कहना है the red color is because of कि आपके पास सल्फोनिक एसिड बाइकोलिस्टाडाइन आता है। फिर आपने मुझे प्रिंसिपल बताना है। आप कहेंगे कि the sulfuric acid acts as a dehydrating agent, it remove the 2 water molecule from the cholesterol ring structure, ठीक है, either at the 2, 4 or the 3, 5 position and we get a bicholesteridine, ठीक है। Then at the same time the sulfuric acid sulfonate the molecule of the bicholesteridine and convert it into sulfonic acid जो कि आपके पास रेड कलर देता है, ठीक है। समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. Okay, so the next reaction is the Liebersman reaction, ठीक है। अब Liebersman में क्या होता है? The basic principle is the same and we don't perform it in a lab and the reason is because of the hazards, क्योंकि आपके पास acid handling जो है वो मतलब थोड़ा ज़्यादा dangerous है, उसकी handling ज़रा बहुत cautious तरीके से होती है, तो इसलिए we avoided to perform it, ठीक है। The Liebersman reaction, but you should know it, आपको आना चाहिए कि what is Lieberman's. The Liebersman reaction is it's a calorimetric test to detect the cholesterol, ठीक है। You will get a red color as the result of the Solvosky's reaction. The red is the only color and the specific color. But in the Lieberman reaction, you will get a series of color. आपके पास क्या होगा कि जैसे reaction होगा ना, सबसे पहले आपको red color मिलेगा, फिर violet होगा, फिर blue, फिर bluish green. टेस्ट ट्यूब में आपको कलर चेंज होते रहेंगे, ठीक है, सीरीज ऑफ कलर, इसीलिए इसे हम कलोरोमेट्रिक टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। आपने और कुछ भी नहीं करना, इसमें कोलेस्ट्रॉल का सॉल्यूशन लेना है एंड यू आर ऑल अवेयर कि हाउ डू वी गेट अ कोलेस्ट्रॉल सॉल्यूशन। द कोलेस्ट्रॉल सॉल्यूशन यू विल डिसॉल्व अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन अ क्लोरोफॉर्म, सो वी गेट अ कोलेस्ट्रॉल सॉल्यूशन and you will take 1 ml of the cholesterol solution in a test tube and you will add a 10 drops of the acetic anhydride and then you will add the 1 ml of the जी अच्छा ठीक है। Actually the procedures are given in your copies, so I am not focusing more on the procedure, क्योंकि procedures आपकी कॉपी में दिए हुए हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि procedures आप उधर से पढ़ लेंगे, लेकिन मैं ज्यादा फोकस प्रिंसिपल पे ला रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैं स्पीड हाई कर रही हूँ। आप अपनी कॉपीज खोलें, पेज नंबर 58, ठीक है। तो आप देखेंगे इधर प्रोसीजर दिया हुआ है ना, मैं आपको बताती हूँ। आपने Liebersman में क्या करना है, आपने 1 ml कोलेस्ट्रॉल सोल्यूशन लेना है, ठीक है।
आपने उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड को डालना है और फिर आपने 1 ml H2SO4 को डालना है। ठीक है, जैसे ही आप ये सब डालेंगे, मिक्स करेंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास सबसे पहले वॉयलेट रेड कलर आएगा, फिर वॉयलेट, फिर ब्लू, फिर ब्लूइश ग्रीन। ऑल्दो हम ये परफॉर्म नहीं करते इधर, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए कि जब आपने एसिटिक एनहाइड्राइड को, सल्फ्यूरिक एसिड को, कोलेस्ट्रॉल सॉल्यूशन को मिक्स किया तो आपके पास सीरीज ऑफ कलर आ गए। ठीक है, समझ आया? यस मैम। Yes, अब ma'am. ठीक है, अब इधर क्या हुआ, व्हाट वाज द प्रिंसिपल इन्वॉल्व हियर, कि आपके पास सीरीज ऑफ कलर आए। ठीक है, here the chloroform again will act as a solvent, the sulfuric acid and the acetic anhydride. Here you have used the two acids, one is acetic anhydride, the other is sulfuric acid. The sulfuric acid and the acetic anhydride both are dehydrating agent. ठीक है, acetic anhydride will convert in its acetate derivatives. ठीक है, and the sulfuric acid will here again sulfonate the cholesterol structure. समझ आया? यहां तक समझ आया? Yes, ma'am. अब मैं आपको बताती हूँ आहिस्ता आहिस्ता ना कि क्या हुआ। आपने क्या किया, देखो यहाँ पे आपने एसिटिक एनहाइड्राइड को भी डाला है। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों जो हैं वो आपके पास कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को डिहाइड्रेट करेंगे। ठीक है, दोनों का प्रिंसिपल सेम था। अगर आपके पास सॉल्वोस्कीज रिएक्शन है या लिबर्समैन है, दोनों का रिएक्शन सेम है। ठीक है, आपने क्या किया कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके पास सॉल्वोस्कीज में सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड ने डिहाइड्रेशन की थी ना, यहाँ पे आपके पास दो एसिड्स हैं, एसिटिक एसिड भी है। ठीक है, एसिटिक एनहाइड्राइड भी है और सल्फ्यूरिक एसिड भी है, लेकिन दोनों एसिटिक एनहाइड्राइड और सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, ये आपके पास कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर से दो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। ठीक है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे तो आपके पास बाइकोलिस्ट्राडाइन आ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा कि एसिटिक एनहाइड्राइड जो है वो एसिटेट डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है अगेन आपको सल्फोनेट करेगा, तो आपके पास यहाँ पे डाइसल्फोनिक एसिड बनेगा। अब मैं आपको इधर लेकर आती हूँ इसमें। अब ये वाला जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, मैं साथ साथ इस को बता रही हूँ और आप लोग लिखो अपने साथ। आपके पास क्या था कि कोलेस्ट्रॉल था। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल पे जैसे ही आपने सल्फ्यूरिक एसिड को डाला तो उसने हमारे पास क्या किया, डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन हो गई अगर आपके पास आइदर सॉल्वोस्कीज रिएक्शन है या लिबर्समैन है, दोनों। ठीक है, दोनों में ये होगा। कोलेस्ट्रॉल तो आपके पास डिहाइड्रेशन 3,5 या 2,4 पोजीशन पे, कार्बन पोजीशन पे डिहाइड्रेशन हुई, तो आपके पास क्या आ गया, कोलेस्ट्रॉल 3,5 और 2,5 डाइन। आपने लिबर्समैन और सॉल्वोस्कीज रिएक्शन में जैसी एसिड कोलेस्ट्रॉल सॉल्यूशन में डाला, डिहाइड्रेशन हुई, इसने दो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया 3,5 या 2,4 कार्बन पोजीशन से, आपके पास क्या आ गया, कोलेस्ट्रॉल 3,5 और 2,5 डाइन। ठीक है, अब इधर ही इंटरनल रिएक्शन आपके पास ऑक्सीडेशन हो गई। ऑक्सीडेशन में आपको पता है कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीडेशन आपके पास हो गई तो आपके पास बाइकोलेस्ट्रॉल 3,5 और 2,5 डाइन बन गया। यहां तक दोनों रिएक्शन होंगे। ठीक है, लिबर्समैन और सॉल्वोस्कीज रिएक्शन आर कॉमन, ये सल्फोनेशन तक दोनों कॉमन है। ठीक है, दोनों में एक जैसा प्रोसीजर हो रहा होता है। अब क्या हुआ कि सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया कि अगर आपके पास लिबर्समैन रिएक्शन है ना, तो आपके पास मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ठीक है, इसी वजह से आपके पास सीरीज ऑफ कलर आ जाएंगे और एसिटिक एनहाइड्राइड की डेरिवेटिव्स बनती है, तो आपके पास सीरीज ऑफ कलर आ जाते हैं। लेकिन आपके पास जो स्पेसिफिकली सॉल्वोस्कीज रिएक्शन है, उधर तो आपके पास कोई दूसरा एसिड नहीं है ना कि कंपीट करे वो सल्फ्यूरिक के साथ। उधर जो सिर्फ एक ही सल्फ्यूरिक एसिड था, तो आपके पास bis 2,4 कोलेस्ट्राडिनाइल डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनता है। जब डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनता है तो यही आपके पास स्पेसिफिक कलर देता है, रेड कलर इन सॉल्वोस्कीज रिएक्शन। लेकिन हमारे पास लिबर्समैन रिएक्शन में हमारे पास जो है मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बनता है, इसी वजह से हमारे पास सीरीज ऑफ कलर आते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड की डेरिवेटिव्स की वजह से। आपकी जो दोनों रिएक्शंस है ना, उसमें डिफरेंस सिर्फ एक ही जगह पे आ रहा है, जहाँ पे डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनेगा तो वो रेड कलर देता है, जहाँ पे मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बनेंगे तो वहाँ पे सीरीज ऑफ कलर आ जाते हैं। और उसकी रीजन ये है लिबर्समैन में
कि वहाँ पे आपके पास दो एसिड है, एसिटिक एनहाइड्राइड है ना और सल्फ्यूरिक पे, तो दो एसिड कंपीट कर रहे होते हैं, ठीक है, और एसिटिक एनहाइड्राइड की भी डेरिवेटिव्स होती हैं, तो इसलिए सीरीज ऑफ कलर आता है। और यहाँ पे आपके पास सिर्फ स्पेसिफिक रेड कलर आता है और डाइसल्फ्यूरिक एसिड की वजह से आता है। समझ आया आपको? मैम ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन खुद हुई है। हाँ, ये तो देखो जहाँ पे आपकी बायोकेमिस्ट्री में ना रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना, मैं आपको बात समझाऊंगी, तो मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक बता दिया, अदरवाइज इन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल रिएक्शन है जो आपके हर बायोकेमिस्ट्री की प्रैक्टिकल में हो रहे होते हैं, ठीक है। हर जगह ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही होती है साइमल्टेनियसली, मतलब ये कोई नई ऐसी चीज नहीं है कि आपके एक स्पेसिफिक इस टेस्ट में हो रही है। ओके मैम। ठीक है, आपके पास क्या होगा कि डिहाइड्रेशन हुई, उसके बाद सल्फोनेशन हुई, ठीक है। एक जगह पे लिबर्समैन में आपके पास मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, अगर मैं आपसे ऑस्पिस में पूछूं ना कि व्हाई डू वी गेट अ सीरीज ऑफ द कलर इन द लिबर्समैन एंड व्हाई वी डोंट गेट अ स्पेसिफिक रेड कलर, तो आपने मुझे आंसर करना है कि क्योंकि we get a monosulfonic acid in the Lieberman reaction because there are the two acids which both compete with each other, ठीक है, and we get acetic anhydride derivatives, तो इस वजह से हमारे पास series of color आता है। But in the Solvosys reaction you get only a specific red color because of the specific disulfonic acid, ठीक है, एक specific derivatives बनती है। Lieberman में आपके पास 3-5 पोजीशन पे सब कुछ हो रहा होता है और Solvosys reaction में आपके पास 2-4 पोजीशन पे हो रहा होता है, ठीक है। So the end product of the reaction is the Solvosys reaction में you get a base 2,4-cholesterol disulfonic acid and you get a red color which confirm the presence of the cholesterol in a given solution. In the Lieberman reaction you get a by 3,5-cholesterol monosulfonic acid and you get a series of the color. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ये प्रिंसिपल आपको समझ आ गया है? Yes, sir. ठीक है। सॉरी आई कैन नॉट हियर यू, रिपीट करो जरा, तेज बोलो। फैंस है ना, फैंस में आवाज नहीं आती, रिपीट करो। मैं आपको रिपीट करती हूँ, ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। आपने क्या किया कि आपने कोलेस्ट्रॉल सोल्यूशन डाला, अगर आपके पास सॉल्वोस्कीज है या लिबर्समैन है, ठीक है, इससे टाइम शो एक शो बस 10 मिनट से दो तो रिपीट करो। आपने कोलेस्ट्रॉल सोल्यूशन डाला, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल सोल्यूशन में आपने एसिड डाला, अगर आपके पास एसिटिक एनहाइड्राइड है या सल्फ्यूरिक एसिड है, दोनों ने क्या किया, पहले डिहाइड्रेशन की, डिहाइड्रेशन के रिस्पांस में आपके पास बाय दिस कोलेस्ट्रॉल 3,5 और 2,5 डाइन आ गया। जैसे ही डिहाइड्रेशन हो गई उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड ने सल्फोनेशन कर दी, ठीक है, तो सल्फोनेशन के रिस्पांस में आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। लिबर्समैन में आपके पास मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बनेगा और सॉल्वोस्कीज रिएक्शन में डाइसल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो आपके पास लिबर्समैन में सीरीज ऑफ कलर आती है इस तरह से क्योंकि उसमें दूसरा एसिड भी डाला गया है, एसिटिक एनहाइड्राइड, जो कि आपके पास डेरिवेटिव्स बनाता है, ठीक है। और सॉल्वोस्कीज में सिर्फ एक ही रेड कलर आता है क्योंकि डाइसल्फ्यूरिक एसिड उधर बनता है। अब आपने क्या करना है कि आपकी प्रैक्टिकल कॉपीज में अगर आप लोग देखें तो आपने ये लिखना है, ठीक है, इसमें जो आपके पास चार्ट है इसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में जो आपके पास पहला प्रैक्टिकल है जिसमें सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है, आपने ऑब्जर्वेशन में लिखना है कि क्लियर सोल्यूशन इज ऑब्टेन और इन्फ्रेंस में लिपिड्स आर प्रेजेंट। ऑयली नेचर ऑफ फैट्स में आपने लिखना है ग्रीसी स्पॉट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन द फिल्टर पेपर, ठीक है, और इन्फ्रेंस में होगा लिपिड्स आर प्रेजेंट। सॉल्वोस्कीज रिएक्शन में यू विल ऑब्जर्व अ रेड कलर, ऑब्जर्वेशन में आप लोग लिखेंगे रेड कलर इज अपीयर्ड, ठीक है, और इन्फ्रेंस में लिखेंगे कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट। लिबर्समैन में आप लिखेंगे सीरीज ऑफ द कलर, लिबरमैन आपने नहीं लिखना क्योंकि आप परफॉर्म नहीं करती तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको वैसे आना चाहिए, ठीक है। आपने अपनी प्रैक्टिकल कॉपीज में आज की डेट डालनी है और ये ऑब्जर्वेशन और इन्फ्रेंस लिखना है और फिर जब आपके जैसे खुलेगा तो आपने चेक करवानी है मुझसे। समझ आया? Yes, ma'am. ठीक है। सॉल्वोस्कीज रिएक्शन बहुत सारे जर्नल टेस्ट में आपके पास सिंपल सॉल्युबिलिटी टेस्ट थे और ग्रीसी एंड ऑयली नेचर के टेस्ट थे, ठीक है। उसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट है सॉल्वोस्कीज रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इसका प्रिंसिपल आना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल में मैंने आपको बता दिया था कि क्या क्या होता है, हमारे पास क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट होता है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट है।
सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल को, कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता है। कौन सी पोजीशंस पे रिमूव करता है? 2, 4 और 3, 5 से हमारे पास बाइकोलेस्ट्राडाइन बनता है। बाइकोलेस्ट्राडाइन की जब सल्फोनेशन होती है तो आपको सल्फोनिक एसिड बनता है। डाइसल्फोनिक एसिड रेड कलर देता है साल्वोस्किस में। मोनोसल्फोनिक एसिड लिवर्समैन में आपके पास सीरीज ऑफ कलर देता है एंड बिकॉज ऑफ द एसिडिक एनहाइड्राइड डेरिवेटिव्स। ठीक है, होप सो आपको सब समझ आए और सब लिखना है कॉपीज में। थैंक यू मैम। जी जी मैम पूछो। मैम एलडीएल और एचडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उनमें कैसे डिफरेंशिएट करते अच्छा हैं, ठीक है, बैड मैं एंड आपको गुड बताती हूँ। कोलेस्ट्रॉल? जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है। जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं ना, वी कॉल इट, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं तो आप बायोकेमिकल बेसिस पे करते हैं ना, इसके अपनी स्पेसिफिक किट्स हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों आर लाइपोप्रोटीन, दोनों आर कंपाउंड लिपिड्स, ठीक है। मतलब कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर के साथ आपके कंपाउंड मतलब टाइप्स में स्टेरॉइड की टाइप्स है, ठीक है, नॉट कंपाउंड नहीं कहेंगे बल्कि स्टेरॉइड की एसोसिएटिव लिपिड की टाइप है स्टेरॉइड, जिसमें आपके पास कोलेस्ट्रॉल आता है। कोलेस्ट्रॉल में फिर आपके पास हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी, ठीक है। जो हाई डेंसिटी होती है ऑफ कोर्स उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है ना, तो आपके पास बायोकेमिकल लैब में अपनी स्पेसिफिक किट्स होती है जो उसको डिटेक्ट करती हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो आपके पास हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। बैड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो आपके पास लो डेंसिटी वाले हैं, ठीक है। जिसकी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो बैड, अगर आपके पास एक लिमिट है, एक रेंज है, अगर आपके पास हम कहते हैं जिन पेशेंट्स का कोलेस्ट्रॉल हाई होता है तो उसमें क्या होता है, हम कहते हैं कि लो बैड कोलेस्ट्रॉल उनमें ज्यादा होता है, ठीक है। अगर आप अपना बायोकेमिकल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, लेबोरेटरी जाके, तो अगर आपका एचडीएल जो है वो हाई है तो इसका मतलब क्या है, एचडीएल अगर आपका हाई है, ऑल तो एचडीएल जो है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है बट दे आर द गुड कोलेस्ट्रॉल, इसका मतलब है कि आपके गुड कोलेस्ट्रॉल आपके हैं, ये आपके पास कोगुलेट नहीं होंगे, ये आपके पास ब्लड में स्टक नहीं होंगे, ये आपके पास कोगुलम नहीं बनाएंगे, प्लैग नहीं बनाएंगे और ये आर्टरीज को ब्लॉक नहीं करेंगे। लेकिन जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होती हैं, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, अगर वो आपके पास ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब दे आर बैड कोलेस्ट्रॉल, दे आर बैड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज दे हैव द डेंसिटी, वो हर जगह स्टिक हो जाएंगे, ठीक है, वो हर जगह चिपक जाएंगे और आपके पास कोगुलेशन करेंगे, प्लैकिंग करेंगे और आर्टरीज को ब्लॉक करेंगे। समझ आ गया? मैम ये जो दो हमने रिएक्शंस पढ़े हैं स्पेसिफिक वाले, इनको हम यूज नहीं कर सकते डिस्टिंग्विश करने के लिए कि हमारे पास एलडीएल है या एचडीएल है? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये आप नहीं करेंगे, उसके अपने स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, ये सिर्फ एक कोलेस्ट्रॉल की स्पेसिफिक टेस्ट है। विच टाइप, अगर आपके पास हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है या लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स है, ये दोनों को डिटेक्ट करेगा, ठीक है, ये स्पेसिफिक नहीं है, स्पेसिफिक टेस्ट सारी इन दी लेबोरेटरी होते हैं। समझ आ गई आपकी बात? यस मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू।